Hello everyone. So this is the lead code must do list for interview prep. In this series, I'm going to do top 150 interview questions from the lead code. So here we have some of the questions of array and strings. So in this section, we have only array and string questions, and if we go a little further down, we have two pointers, sliding window, matrices, hash maps, binary tree general up to multi-dimensional DP. Okay, so we will start with this merge sort array. So first we will going to understand the question properly. It is an easy level question, and then we can see some topics in companies, and we can also see some hints from this. Let's read the question. Also, I am going to use Java as my programming language for whole series. You are given two integer arrays, nums1 and nums2, sorted in non-decreasing order, which means in ascending order you can say, and two integers m and n representing the number of elements in nums1 and nums2 respectively. Merge nums1 and nums2 into a single array sorted in non-descending order. So we have to merge nums1 and nums2. Okay, pretty easy. The final sorted array should not be returned by the function. Okay, but instead be sorted inside the array nums1. Okay, the accommodate this nums1 has a length of m plus n, where the first m element denote the elements that should be merged, and the last n elements are set to 0 and should be ignored. Okay, nums2 has a length of n. Okay. So this final paragraph is saying that you don't need to create another array or another function which can store the element. We have to store all the element in nums1 only. So we have to also take care of space complexity. The inputs are here. So first three elements are nums1's element, and last three elements are set to 0 as it mentioned already, because we have to put all the elements in it. Okay. Now let's start with this question. So now let's solve this question. I have already added the nums1 and nums2, and we have number of elements in nums1 is equals to 3. It's already mentioned. Okay, and number of element in nums2 is equals to 2, right? So let's sorry, 3. So now let's think about it. How can we solve this? So let's start with the basic. Suppose I is at here and j is right here, right? So if we compare both of these two elements, we can see that nums2 is greater than nums1. We cannot do anything. We just shift I by 1. Okay. Again, compare both of these two elements, both the elements of nums2 and nums1. They both are same. We don't need to do anything. Just shift I by 1. And now here we can see that the element at nums1 is greater than the elements at nums2. Then in that case we have to shift this element by 1. How we can do that? Here we can see that number of elements are 3 in the nums1 element. So we can consider that after 3 elements we 0 is started. So if we can see m is equals to 3, we have 1 2 3 elements, and after this 0 is started. So we can consider that we will consider one iterator k which is equals to m. Now if you see that currently k is right here. Okay, we have to shift this element by 1. How can we do that? हमें k को नहीं चेंज करना है, हमें सिर्फ temp k की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा. temp k की वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं हम? temp k को हमें एक एक वैल्यू माइनस कर करके शिफ्ट करना है. यहाँ तक नहीं करना है, बट यहाँ तक तो करना ही है ना. ठीक है, तो हम temp k को हम लेंगे k के इक्वल, जो कि k के इक्वल होगा. ठीक है, और एक temp वैल्यू लेंगे
जो कि इक्वल टू हो जाएगा जो भी टेम्प के माइनस वन पे वैल्यू होगी, जो कि नम्स वन के माइनस वन पे वैल्यू होगी, राइट। हम इस तरीके से कंसिडर करेंगे, जो भी टेम्प वैल्यू होगी टेम्प के एक माइनस पे, हो सकता है यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 5 भी हो सकता है ना, ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। तो हम तब उस केस में क्या करेंगे, इस केस में सपोज क्या करना चाहिए हमें, तो इस केस में हमें जो भी एलिमेंट के टेम्प के पे है उससे, मतलब इसको मैं टी के समझ लेती हूँ, जो भी एलिमेंट टेम्प के पे है, ठीक है, उसके माइनस वन पे जो एलिमेंट है उसको यहाँ कॉपी कर देंगे, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब सेम थिंग क्या होगा, टेम्प के तो यहीं रहेगा लेकिन टेम्प के माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, यानी टेम्प के आ जाएगा इधर। अब टेम्प के बोलेगा मेरे जो माइनस वन पे वैल्यू है दैट इज 4, उसको यहाँ शिफ्ट कर दो, दैट इज राइट हियर, ठीक है। अब फिर से टेम्प के वो हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे टेम्प के आ गया, अब वो बोलेगा जो मेरे माइनस पे है ना वो वैल्यू फिर से आई मीन ये 3 रहेगा और फिर यहाँ पे डाल दो, ठीक है, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट 3 इज शिफ्टेड बाय 1, okay, and now we safely copy the nums2 element at ith position of nums1 element, right. And now you can see that our sorted arrays started building, correct. So here I have taken these two elements just for example. Let me remove all of this and remove tk as well because it's a temporary element, and currently k will be exactly at the position of 3. We have to move the k element by 1 because we have already shifted an element at kth position, okay, so we will increase this value by 1, ये एक वैल्यू से पक्का इंक्रीज होगा। अब k को हमने एक एलिमेंट से इंक्रीज कर दिया, हम फिर से और j इन द लास्ट हम j को एक एलिमेंट, एक नॉट एलिमेंट, वी विल इंक्रीज j बाय 1, ठीक है। आइट्रेटेड तो चलता ही रहेगा ना क्योंकि हमें इंक्रीज चेक करते रहना है। अब हमारे पास आई भी फिर यहाँ पे था वो यहाँ आ जाएगा, करेक्ट। अब हम फिर से कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयर किया हमने, कंपेयर किया कुछ मतलब कि ऑब्वियसली वो 3 बड़ा था और ये जे छोटा था, तो वी हैव टू डू नथिंग। फिर से देखा कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर से देखा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी आई तो बाहर आ गया। लेकिन अब आप देखो कि जे में 2 एलिमेंट्स तो बचे हुए हैं ना अभी करंटली, और हम ये भी देख रहे हैं कि के भी वही उसी पोजीशन पे है जितने एलिमेंट्स बचे हुए हैं, तो हम आई और के को ट्रेवर्स कर देंगे। हम जो भी जे पे वैल्यू हो नम सेट 1 के पे डाल देंगे, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और के हम 1 से इंक्रीज कर देंगे और जे को भी वी विल इंक्रीज बाय 1 एंड यहाँ पे 6 आ जाएगा फिर, ठीक है। के इंक्रीज होगा आउट ऑफ द लूप एंड जे भी इंक्रीज हो जाएगा आउट ऑफ द लूप। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस इजीली, ठीक है। लेट्स कोड दिस। First thing first is we need num integer, oh sorry, okay. First thing first is we need int I, which will be at 0, and int j, and this will be also at 0, okay. Next is int k element, which is at m, right. Now we will traverse till I is less than nums 1 dot length, okay, and j is less than nums 2 dot length, okay। मतलब दोनों आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ बाउंड जो चला जाएगा तो ऑब्वियसली हमारे पास एक्सेप्शन एरर रिटर्न हो जाएगा, हमें उसको आउट ऑफ बाउंड नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे कि इफ जो भी नम्स 2 पे एलिमेंट है क्या वो लेस देन है नम्स 1 के एलिमेंट पे। ये हम चेक करेंगे, अगर लेस देन है तो हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है, शिफ्ट एलिमेंट by 1, right. We will see that later,
बट एल्स पोजिशन में क्या होगा, हम आई को प्लस प्लस ही करते रहेंगे, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, ठीक है। लेकिन शिफ्ट करने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, हमने बोला था ना कि के की जगह एक हम टेम्प के लेंगे, राइट। तो इंट टेम्प के इज इक्वल्स टू के, राइट। अब हम एक और लूप लगाएंगे, वो लूप क्या करेगा, वाइल टेम्प के जो है अगर ग्रेटर देन है आई के, एंड एक और हम डालेंगे कि टेम्प के शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0, नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, पर 0 से बड़ा नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज अब हम एक टेम्प वैल्यू लेंगे, जो कि हमारे पास जो भी नम्स 1 के टेम्प के -1 पे पड़ा होगा ना, वो वैल्यू हमें लाके दे देगा, ठीक है। कैसे, अब ये हमारा एरे था, ठीक है। अभी ये स्टार्टिंग में कैसा था, यहाँ पे 3 था, सॉरी यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 0 था। अब हम वो शिफ्टिंग वाली चीज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे टेम्प के था, इफ यू रिमेम्बर टेम्प के था, राइट। अब टेम्प के -1 पे 3 पड़ा हुआ है, तो वो लाके इसमें डाल देगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, शिफ्ट ही तो करना है, हमें सिंपल सा ये लिखना है नम्स 1 एट टेम्प के, क्योंकि टेम्प के पे तो अभी फिलहाल 0 है ना, ये 0 है, सॉरी, ठीक है। टेम्प के पे फिलहाल अभी 0 है ना, तो वहां पे हम टेम्प वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, एंड टेम्प के को माइनस कर देंगे बाय 1, ओके। इन द एंड हम के को बाय +1 कर देंगे बाय 1, ठीक है। और वन मोर थिंग, नम्स एट आई पे हमारे पास, सॉरी नम्स 1 एट आई पे हमारे पास आ जाएगा नम्स 2 एट जे, और आई को हम प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, और जे भी प्लस प्लस होगा, क्योंकि हमने आई पे वैल्यू डाल दी, उसको प्लस कर दिया, जे पे वैल्यू डाल दी, उसको प्लस कर दिया। एंड लास्ट में एक चीज बस चेक करेंगे, क्योंकि अगर जे हमारा यहीं पर रह गया, तो यहाँ पे एलिमेंट्स बचे हुए हैं ना नम्स 2 पे, तो हम बस एक बार ये चेक करेंगे, इफ जे इज लेस देन नम्स 2 डॉट लेंथ, ठीक है। अगर ऐसा है तो वाइल, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था कि जहां पे के था उतने ही एलिमेंट्स बचे थे जितने के में बचे हुए हैं, ठीक है। तो के पे जो भी होगा, के से हम ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे नम्स 1 में, तो नम्स 1 डॉट लेंथ, मतलब इससे तो छोटा ही होना चाहिए एक्सेप्शन को सॉल्व करने के लिए, एंड जे इज ऑल्सो लेस देन नम्स 2 डॉट लेंथ, ठीक है। अब इसको ट्रेवर्स करने के बाद हम इसमें वैल्यू डालते रहेंगे, नम्स 1 डॉट के प्लस प्लस इज इक्वल्स टू नम्स 2 जे प्लस प्लस, राइट। हमें रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, वो सीधे नम्स में जाएगा, ओके। एक बार रन करके देख लेते हैं, ओके कुछ ओके। तो यहाँ पे ये मैंने कमेंट नहीं किया, तो ये एरर दे दिया इसने, सॉरी। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है, नम्स एंड एनीथिंग एल्स, नो, ओके। तो ये हो गया सॉल्व, ठीक है। सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस, okay, it's accepted. So that's all for this video. Thank you everyone.